A very good morning to all of you, my dear students. I welcome you all to this channel. And students, today I'm just going to start this understanding adolescence, and this is a wonderful chapter regarding nutrition. What do you mean by nutrition? When you talk about a proper healthy diet, it means nutrition. So, to ensure normal healthy growth during adolescence, a nutritious diet is necessary for all children. Let me start reading this chapter for you, and I'll explain these words meaning. Okay. 15-year-old Sangeeta had been a high achiever in academics and athletics. So remember the name of that girl, Sangeeta, who is 15-year-old, and she had been a high achiever in which academics and athletics both means अपने study में भी and athletics में भी. However, in the last 6 months, she has been less active. As she gets tired towards the evening, she becomes irritable and short-tempered too. मतलब she is 15-year-old and she is high achiever, but what happens कि पिछले 6 मंथ से शी इज़ बीइंग वेरी लेस एक्टिव एंड शी फील्स टायर्ड, वो थक जाती है जल्दी से, ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई है, इरिटेबल हो गई है, शॉर्ट टेम्पर्ड हो गई है, मीन्स तुरंत गुस्सा आ जाता है. शी गेट immediately angry. 13-year-old Arjun says he cannot concentrate on his studies as he gets tired easily. He spends a lot of time with his friends, his appetite is fairly poor. Both Sangeeta and Arjun were interviewed about their daily diet and routine. Sangeeta, a class 10th student, begins her day with the tuition classes at 6 a.m. She drinks a cup of buttermilk before the tuition and then goes to school. Her lunch at school consists of curd rice. She comes at school consists of curd rice. Just a minute. She comes home at around 4 p.m. She has 2 jam sandwiches. Dinner is a cup of milk before going to bed. कहने का मतलब क्या, when she gets up, so 6 a.m. पे इनका इनका ट्यूशन होता है. ट्यूशन से जाने से पहले शी टेक्स अ बटर मिल्क ऑफ कप ऑफ बटर मिल्क, एंड फिर उसके बाद उसके लंच में क्या रहता है, कर्ड राइस रहता है. एंड जब वो रिटर्न होती है तो वो जो जैम सैंडविचेस खाती है, एंड डिनर के बाद इज ए कप ऑफ मिल्क बिफोर गोइंग टू बेड. तब मिल्क फिर से रात में फिर से दूध पी के सोती है, ठीक है. अर्जुन, स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th, स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हिज टाइम आउटडोर्स. ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ये बाहर बिताते हैं खेलने कूदने में. ही वेक्स अप, खेलने कूदने पढ़ाई हर चीज़ में, ठीक है, ट्यूशन्स में हर चीज़ में. ही वेक्स अप लेट एवरी मॉर्निंग एंड रशेस आउट ऑफ द हाउस. हमेशा ये लेट से ही उठते हैं और बहुत तेज़ी से भाग के चले जाते हैं घर से. क्यों? बिकॉज लेट होता रहता है स्कूल के लिए. ही रिफ्यूज टू ईट. Okay, and around 10:30 a.m. he rushes to the school canteen to eat a hot samosa followed by a soft drink. For lunch he has a vegetable burger with a milkshake. He knows vegetables are good for health. Towards everything he has a cup of coffee after a game of football. When he sits down to study he feels tired, he falls asleep before dinner. Girls and boys gain 25% of their adult height and 50% of ideal body weight during adolescence. Therefore, the food we eat during adolescence should provide sufficient energy and nutrients for normal growth, for carrying out daily activities, and for participating in sports. Adolescents also need specific nutrients to prevent teenage related problems like iron deficiency. Adolescent boys need 2100 to 2700 calories per day. Girls need 1900 to 2500 calories depending on the stage of growth. During the peak height gain period, the energy need of adolescents is at its maximum. Energy needs depend on physical activity. Hence, a sportsperson like Arjun consumes a lot of energy, but his calorie intake is not enough. 50% of the total daily energy requirement should be consumed in the form of carbohydrates, such as grains, cereals, and fresh fruits and vegetables. Food that are rich in fiber. Okay,
देखो उसका सारी का कहने का मीनिंग क्या था यहाँ पे देखो। अर्जुन 10:30 AM पे निकलते हैं, भागे भागे स्कूल चले जाते हैं। जैसे पहुँचते हैं अपने कैंटीन में अटैक करते हैं कि मेरे को कैंटीन में जाके गरम गरम समोसा खाना है। ठीक है, समोसा खाने के बाद वो एक सॉफ्ट ड्रिंक यानी कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, मे बी पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक, माज़ा, फ्रूटी, कुछ भी खा पीते हैं। लंच में वो क्या करते हैं, वेजिटेबल बर्गर लेते हैं मिल्क शेक के साथ। वो जानते हैं कि जो क्लास 8th में अर्जुन पढ़ता है वो जानता है कि वेजिटेबल इज़ गुड फॉर हेल्थ, इसीलिए वो वेजिटेबल बर्गर खाता है। बर्गर ही खा रहा है बट वेजिटेबल वाला खा रहा है। टुवर्ड्स इवनिंग, शाम में जब ऐसा होता है तो जब रिटर्न होते हैं तो वो एक कप ऑफ कॉफ़ी लेते हैं, फुटबॉल खेलते हैं दोस्तों के साथ। मतलब फुटबॉल खेलने के बाद कॉफ़ी पीते हैं। जब वो दोबारा शाम को पढ़ने बैठते हैं तो इतना थके महसूस करते हैं, ही सो टायर्ड, कि वो पढ़ते पढ़ते ही सो जाते हैं या खाना खाने से पहले ही सो जाते हैं। ठीक है, अब ये है दोनों की डेली रूटीन और इनके खाने पीने का तरीका। यहाँ पे फिर बता रहा है कि किसकी कितनी नीड होती है। देखो, गर्ल्स एंड बॉयज़ gain 25% of their adult height and 50% of their ideal body during adolescence. आइडल बॉडी वेट मतलब 25% जो भी इनकी हाइट में ग्रोथ होता है, उस टोटल ग्रोथ का 25% कब होता है, इस एडोलेसेंस में होता है। ठीक है, और वेट का क्या होता है, 50% वेट जो है इनको एडोलेसेंस में गेन होता है। इसी तरीके से जो भी हम फूड खाते हैं या जो भी न्यूट्रिएंट हम लेते हैं, वो नॉर्मल ग्रोथ के लिए, एक नॉर्मल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लाइक डिटेलिंग है कि कितना कितना चाहिए होता है। तो एडोलसेंट बॉयज नीड्स 2100 to 2700 कैलोरीज पर डे एंड गर्ल नीड्स 1900 to 2500 कैलोरीज डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ ग्रोथ। कौन सा स्टेज चल रहा है ग्रोथ का, मतलब अभी छोटे हैं, बड़े हैं, क्या एज है। ठीक है ना। अच्छा हाँ, ये जो चैप्टर ना एडोलसेंस, इसका देखो मीनिंग क्या है। द पीरियड व्हेन अ यंग पर्सन इज डेवलपिंग इनटू एन एडल्ट, एजेस 12 to 18, यानी ये जो 12 से 18 ईयर्स का जो एज होता है, वी कॉल इट एडोलसेंस। ठीक है ना, चलो ओके। अब ये एक लाइन आती है कि जब उनका हाइट का ग्रोथ होता है ना, इस टाइम पे, इस एडोलसेंस जो 12 से 18 ईयर्स वाली एज होती है, इस एज में बहुत ज़्यादा उनके अंदर एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट होता है, वो फुलफिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेट्स से यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है कि जैसे अर्जुन है, अर्जुन का क्या है ना कि एनर्जी का कंजम्पशन उसका ज़्यादा है, क्योंकि वो खेलता कूदता है, बाहर जाता है, स्पोर्ट्स पर्सन है, आई मीन कि प्लेइंग पे ज़्यादा ध्यान देता है। क्योंकि अब ज़्यादा ध्यान देता है, सो ही नीड्स हाई इनटेक ऑफ एनर्जी। सो इसीलिए इसका वो ना बोला 2100 से 2700, वो इसीलिए है कि अगर इसका ग्रोथ, इसका ज़्यादा वर्कआउट है तो ये ज़्यादा एनर्जी लेगा। करेक्ट। अब देखो, बॉयज़ नीड 45 ग्राम्स टू 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स पर डे, वाइल गर्ल नीड 45 to 50 ग्राम्स। Higher amounts are necessary for teenagers who take part in sports. Egg, fish, rajma, milk, dairy products are rich in protein. क्या क्या प्रोटीन में रिच होते हैं, एग, फिश, राजमा, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है। वेजिटेरियंस कैन इंक्लूड सोयाबीन्स, जो वेजिटेरियंस होते हैं वो क्या खा सकते हैं, दे कैन इंक्लूड सोयाबीन्स, ग्रेन, सीरियल्स एंड नट्स एंड सीड्स इन देयर डाइट। प्रोटीन्स आर एसेंशियल फॉर टिश्यू बिल्डिंग, टिश्यू बिल्डिंग के लिए प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं। संगीता एंड अर्जुन आर एनेमिक ड्यू टू इनएडिकेट इनटेक ऑफ आयरन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल पैराग्राफ आ रहा है। संगीता एंड अर्जुन एनेमिक हैं। एनेमिक का मतलब क्या होता है, वेयर द आयरन कंटेंट इज लो, वेयर द आयरन कंटेंट इज लो। Okay, so boys and girls need iron, zinc, magnesium during the period of their growth. Iron is found in green leafy vegetables, dates, raisin, almonds, meat, food containing iron should preferably be taken with fruit juices for better absorption. Food containing iron should preferably, मतलब जिसमें जिन जिन फूड्स में आयरन होता है, ठीक है, उनको ज़रूर से ज़रूर लेना चाहिए। और उसमें क्या, जैसे कि फ्रेश जूसेस फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन, कहने का मतलब क्या है कि पहले आप मील ऐसा उठाओ, खाओ जिसमें कि आयरन हो, ठीक, जिसमें कि आयरन हो। अब इस आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए क्या आप लो, फ्रेश जूस लो, फ्रेश जूस लो। ठीक है।
मिल्क reduce और stops iron absorption. मिल्क रिड्यूसेस और स्टॉप्स आयरन एब्जॉर्प्शन. अब मिल्क क्या करता है ना कि रिड्यूस कर देता है और ये बिल्कुल रोक देता है आयरन का एब्जॉर्प्शन. हियर इज अ टिपिकल फास्ट फूड मील कंप्राइजिंग मिल्क शेक एंड बर्गर इनहिबिट्स आयरन एब्जॉर्प्शन. टिपिकल फास्ट फूड मील क्या क्या वो टिपिकल है? कंप्राइजिंग मिल्क शेक, लोग पीते हैं ना मिल्क शेक वो अमूल वाला, तो मिल्क शेक और ये जो बर्गर होता है ना, पीपल फील कि अब मिल्क शेक है तो मैं तो आई एम हैविंग मिल्क, but this is actually stopping or barricading the iron absorption in your body. And when there is iron absorption, you feel anemic. And what is meant by anemic? Means there is a lack of hemoglobin. Lack of hemoglobin means lack of blood. ठीक है ना? Lack of blood means complete lethargicity. Complete lethargy. Okay. Here's the spelling. Lethargy means आलसी. नॉट ऑलसी बट बिल्कुल थका थका सा हुआ. ठीक है. अ सेंस ऑफ वेल बींग इज अचीव्ड बाय एप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन ड्यूरिंग एडोलेसेंस. अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी इम्प्रूव्स द सेल्फ एस्टीम ऑफ टीनेजर्स. एक साउंड बॉडी, एक साउंड माइंड, साउंड मतलब एक शांत दिमाग, साउंड मतलब आवाज़ वाला नहीं, एक शांत दिमाग एक अच्छी बॉडी में हर एक टीनेजर का एक सेल्फ स्टीम यानी आत्म सेल्फ कॉन्फिडेंस कह लो, सेल्फ स्टीम क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस कह लो, ठीक है ना. सेल्फ स्टीम इंक्रीज करता है. क्या करता है? सेल्फ स्टीम इंक्रीज करता है. रिमेंबर हेल्दी बॉडी मीन्स हैप्पी यू, क्योंकि अगर हेल्दी बॉडी है तो क्या होगा? आप क्या रहोगे? हैप्पी यू रहोगे, मतलब आप खुश रहोगे. ठीक है ना. सो इन विच क्लास, अच्छा ये जो क्वेश्चन है डिस्कस एंड राइट आंसर दीज क्वेश्चंस, तो इन क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है कि संगीता और अर्जुन किस क्लास में थे, थोड़ा सा डिटेल्ड आंसर देना. और जो ये वर्ड मीनिंग है ना, ये वाली 4 वर्ड मीनिंग्स, और इस पेज पे जो 3 वर्ड मीनिंग्स हैं इन वर्ड मीनिंग्स को भी कर लेना, और इनके जो क्वेश्चन आंसर हैं अप टू क्वेश्चन नंबर 7 ये भी कर लेना है. एंड आफ्टर डूइंग इट प्लीज सेंड इट टू मी. ठीक है ना. दैट्स ऑल फॉर द डे स्टूडेंट्स. थैंक्स अ लॉट.